Nandini? A very good afternoon to each and everyone present over here. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today. With this note, I, Nandini Chawla, on behalf of Janki Devi Memorial College Alumni Association under the aegis of IQAC Center for Career Counseling, Career Opportunities and Skill Enhancement, extend a very warm welcome to our principal, Professor Swati Pal, resource person, Professor Ramola Madnani ma'am, teacher coordinators, and all our participants. A woman of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an ideal of knowledge and experience, and an inspiration to all of us. Professor Swati Pal is a Charles Wallace and John McGrath Theatre Studies awardee and has received a Lifetime Achievement Award for contribution to educational planning and administration from WAGE. She is also an awardee of the 34th Dr. S. Radhakrishnan Memorial National Teacher Award 2018. She has lectured and published widely on subjects ranging from agit pop theatre, creative writing, academic writing to modern European and British drama as well as gender. She is also the Vice President of the Indian Association of Commonwealth Languages and Literature. I would like to welcome Principal Professor Swati Pal in absentia. A great intellectual, an unparalleled mentor, an enthusiastic teacher, a visionary. She has played all the roles with utmost perfection. With immense pleasure, I would now like to welcome Vice Principal of JDMC and President of Alumni Association, Professor Sandhya Garg ma'am in absentia. Her dedication and determination leads every task to perfection. With immense respect, we invite the Vice President of Alumni Association, who is also the coordinator of today's session, Dr. Viva Jain ma'am, to please say a few words. Ma'am, you're on mute. Oh, that's okay now. Namaskar. And I welcome you all to a very, very useful session, that is the health in your hand. आप ही के हाथ में है आपकी हेल्थ, जो हम पहले नहीं समझते थे कि यस हमारे ही हाथ में है. हम सोचते थे कि ठीक है, जो काम हो रहा है जैसे हो रहा है बिल्कुल ठीक है. But now we have realized, and Dr. Madnani has really let us realize that yes, health is wealth. पहले केवल ये पढ़ा था, health is wealth. Now we have started realizing that health is wealth. And now I think everybody knows the importance of health. This COVID-19 has really get us realize that health is wealth. And on the same topic, Dr. Ramola Madnani will take up the today's session. I'll not take much of your time in welcoming you and just telling you that what is the importance of this lecture, because she will be giving us 12 tips, the magical tips she will be giving us, through which we can make our health, we can make us healthy, wealthy, and sound. With these words, I'm just handing over to Nandi. Thank you, Nandi. Thank you, ma'am. A teacher is a person who surrounds the students with inspiration to learn again every day. I take immense delight in introducing the speaker for today, Professor Ramola Madnani ma'am. She did her graduation in the year 1982 from Janki Devi Memorial College, University of Delhi. She has done a certificate course related to acupressure from Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. She has completed several diploma and certificate courses related to acupressure conducted by ASPEUS. She has been a coordinator in Delhi for ASPEUS Allahabad. She initiated and has been teaching acupressure at James Rohini, New Delhi since last 2 years. She has her own therapy center in Mansarovar Garden. She has trained close to 5,000 students till date, many of whom are practicing independently. It's an honor for us to have Ramola Madnani ma'am with us. We request Professor Madnani to please address the gathering. नमस्ते, सबको मेरा नमस्कार.
मैं रमोला मतनानी एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान इलाहाबाद से प्रोफेसर हूँ और जेडीएम की तो एलुमनाई हुई। तो आज हम कुछ खास बातें जो मेरे को सबसे ज़्यादा ऐसा लगा कि कोविड के बाद बहुत से ऐसे पेशेंट डेली आ रहे थे जो उसके साइड इफेक्ट को ला रहे थे। तो आज हम उन साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। और जैसे विभा मैम ने कहा कि सारी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आपके अपने हाथ पे ही वो पॉइंट्स हैं। तो वो पॉइंट्स देखेंगे कैसे हमें उन्हें प्रेस करना है और वो पॉइंट कहाँ पर है। तो आप जो इस समय कोविड की वजह से जो आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, उसको आप शायद 1 वीक 15 दिन या कुछ टाइम के बाद आप इस प्रॉब्लम से ठीक हो सकेंगे। कभी कभी तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये मैजिकल पॉइंट था, मैं 1 ही दिन में ठीक हो गई। तो हर किसी को अलग अलग रिएक्ट करेगा, पर करेगा सबको। तो आइए हम कुछ उन पॉइंट्स को देखें जो सबसे ज्यादा मैंने अपने क्लिनिक में देखा जो पेशेंट कोविड के बाद आ रहे थे। तो स्क्रीन भावना भावना जी, आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं क्या? Ma'am, you're not audible. भावना, हाँ, भावना मैम का शायद नेटवर्क का इश्यू लग रहा है मेरे को। okay, fine. Then let me do it. I really don't know. I think you people make me the host, then I'll share. Can you hear me? Yes, ma'am, we can hear you. Ma'am, I think. हाँ, भावना जी की भी आवाज आ गई शायद। I really don't know. I will not be able to share. I think if I become the host, then only I'll be able to. Yeah. ठीक है। ओके, मैंने ये कर जो मैंने हाँ, कर दी। मैं आपको भी भेजती हूँ। जी जी, गलत हो गई क्या? ये 12 पॉइंट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक्यूप्रेशर में हॉटनेस पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं या लियो कनेक्टिंग पॉइंट। तो ये हॉटनेस पॉइंट का क्यों मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने देखा कोविड की वजह से जितने पेशेंट आ रहे थे उनको न्यूरो का प्रॉब्लम हो रहा था, न्यूरोजेनेटिक, जैसे कि या तो सर्वाइकल हो रहा था या उनको लोअर बैक का इशू हो रहा था या ब्रेन से इश्यूज हो रहे थे। आइए उन इश्यूज को ठीक करने के लिए मैंने इन हॉटनेस पॉइंट का सिलेक्शन किया, क्योंकि मैंने देखा इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैं आपसे भी शेयर करना पसंद कर रही थी। तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, LU7 पॉइंट। ये लंग्स का हॉटनेस पॉइंट है और आपने सबने देखा कि कोविड में सबसे पहले इश्यू जो है वो लंग्स पे ही आ रहा था। तो हमारा पहला पॉइंट भी लंग्स से ही है। ये पॉइंट आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या आपको थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है। थ्रोट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है कोविड का, जो बहुत लंबे तक चल रहा है। यदि कोविड ठीक भी हो गया तो बहुत लोग अस्थमैटिक हो गए हैं, तो उसको भी ठीक करने का ये पॉइंट है।
मैंने जैसे कहा कि कुछ पॉइंट तो आपको ऐसे लगेगा आज ही लगाते हमें आराम आने लग गया, तो गला खराब है, चाहे ये कोविड है ओमिक्रॉन, आप तब भी इसको लगाएं। एल्यूट 7 पॉइंट पे कैसे दबाना है, आपने सिंपल मेरे हाथ को देखिएगा, इस पॉइंट को मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर को इनसाइड पे लिया और यहाँ पे प्रेशर दिया, यहाँ रिस्ट फोल्ड से मेरे 2.5 उंगली पे एल्यूट 7 पॉइंट है। इस पॉइंट को प्रेशर देने से जिनको गले में इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे अभी मुझे हो रहा है, तो ये मैं एल्यूट 7 दबा दूं तो ये गला दर्द ठीक हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा कल तक, ठीक है। ऐसा ही जिनको अस्थमा में चेंज हो गया है, उनको शायद 1 महीना तक डेली इसको 1-1 मिनट के लिए आप दबाएं, या आप टेप से, जिनके पास मैग्नेट नहीं है वो लोग मटर का एक दाना यहाँ लगा दें तो अस्थमा ठीक होने लगेगा। सिंगल पॉइंट आप एल्यूट 7 लगा लें, उसके साथ सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है या ब्रीदिंग में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है और उसके साथ हमारे को फेस पे स्वेलिंग दिखाई दे रही है, तो एल्यूट 7 पॉइंट को हम दबा दें। इसके अलावा दांतों में कोई दिक्कत आ रही है तो दांतों के प्रॉब्लम को भी ये ठीक कर सकता है। खासकर मैंने देखा है जिनके दांत थोड़े से बाहर आ जाते हैं, तो ये दांतों को भी अंदर कर सकता है। तो आप क्यों तार लगवाना चाहते हैं, यदि आप इस पॉइंट को डेली प्रेशर करें, यदि आपको अपना बच्चा ही, छोटा बच्चा, आपको शुरू से बचपन से ऐसे लगता है इसके दांत थोड़े से बाहर की तरफ है, तो आप डेली एल्यूट 7 पॉइंट को दबाते रहेंगे तो उससे शायद दांत के लिए कोई करेक्शन की ट्रीटमेंट करना नहीं पड़ेगा। सिंगल पॉइंट आपको एल्यूट 7 बहुत रिलीफ देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप रिस्ट में उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। अब हम यही सेम हम इसको ब्योल मैग्नेट में फिंगर, हम जो इंडेक्स फिंगर है इस पे देखें, आपके चार्ट में सामने दिखाया हुआ है, आप ये जो आपका मिडिल फैलेंज है उसका 1/3 ले लें। इस पॉइंट पे आप एक मेथी दाना या एक मैग्नेट लगा सकते हैं, है ना। 1/3 लेना है, इस फैलेंज का 1/3, इस पोर्शन पे आप एक मेथी दाना या एक मैग्नेट लगा के भी डेली इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि आपको ऐसा लग रहा है, ये इस आपके कोविड से रिलेटेड तो नहीं है, पर जब फीमेल को मेनोपॉज हो जाता है तो हॉट फ्लैशेस चलते हैं, उसके लिए भी ये सिंगल पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा। या कोई ऐसी बीमारी जो जेनेटिक है, हेरिडिटरी से आ रही है, उसको भी ठीक करने के लिए ये एक सिंगल पॉइंट आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का 6 पॉइंट, LI6। ये शरीर में कहीं भी म्यूकस रुक गया है, म्यूकस निकल नहीं रहा, म्यूकस का निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आयुर्वेद के हिसाब से मल है ना, कचरा है जिसको निकलना ही है। तो इस पॉइंट को बॉडी से म्यूकस निकालने का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैम ये P6 आ गया है, LI6। चलिए P6 पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए मैम चेंज कर रही हैं आप, P6 कर लेते हैं। P6 पॉइंट आपके पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट है। ये भी आपने कैसे इसको ढूंढना है, आप अपने रिस्ट जॉइंट से बिल्कुल सेंटर में 2.5 उंगली के बाद ये पॉइंट है, आपको सामने शो भी हो रहा है। और यदि ब्योल में हम ढूंढें, ये भी इसी तरीके से बिल्कुल मिडिल में आपके 1/3 के बाद होगा। ये पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट
कभी किसी का आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर भी लो या हाई हो रहा है, तो ये लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये आपके तुरंत ब्लड फ्लो को ब्रेन तक ले जाता है। तो बीपी लो हो रहा हो, आप इस पॉइंट को लगा दें तो बीपी थोड़ा सा रेज हो जाएगा और ब्रेन में ब्लड जो नहीं जा रहा है वो जाने लगेगा। दूसरा लिखा हुआ है, आपके चेस्ट रीजन में कोई भी इशू हो रहा है, चेस्ट हैवी हो रही है, चेस्ट में पेन आ रहा है। बहुत बारी आपने देखा होगा कि आपने सुना कि कोविड की वजह से हार्ट के बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। तो हार्ट के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, चेस्ट में पेन को ठीक करने के लिए आप P6 पॉइंट को दबा सकते हैं या यहाँ पे एक मेथी दाना लगा सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक बहुत बन रही है। गैस्ट्रिक भी आप देखें बहुत कॉमन है कोविड के पेशेंट में। गैस्ट्रिक बहुत बनने लगी है। कोई कहता है पेट फूल रहा है, कोई कहता है मेरे को इसकी वजह से हाथ में दर्द आ रहा है, कोई अलग अलग सिम्टम्स सब बता रहे हैं, पर देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक बहुत हो रही है। तो गैस्ट्रिक को ठीक करने का, खासकर चेस्ट एरिया में गैस्ट्रिक का इशू हो जा रहा है, वहां रुक जा रही है गैस्ट्रिक, तो इसको ठीक करने का पॉइंट है। इसके अलावा ये कोविड से रिलेटेड तो नहीं है, पर जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत लोगों को हमने देखा वॉमिटिंग होने लगती है, चक्कर आते हैं। तो ट्रैवलिंग सिकनेस को भी ठीक करने का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कोई हमारे पास आता है गैस्ट्रिक की बात करता है तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट को दबा देते हैं, तो धीरे धीरे चेस्ट से निकल जो भारीपन हो जाता है उससे निकल जाती है और अच्छा महसूस होने लगता है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया ट्रैवलिंग सिकनेस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और डॉक्टर्स ने खुद अपने उन टेस्ट के कर उससे देखा है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसे जो प्रेगनेंसी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी हम एक P6 पॉइंट को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, ये हमारे ब्रेन को कामनेस देता है। कोविड की वजह से आपने देखा बहुत लोगों के अंदर डिप्रेशन, बहुत सारे वो हो जाते हैं, इश्यूज हो रहे हैं, तो ये कामनेस को भी ठीक करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक की वजह से सर में भारीपन हो रहा है, वो क्यों होता है? इसका कारण होता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें वायु चली जाती है और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो ब्रेन में क्या होने लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे ब्लड की कमी हो गई है और ब्रेन में दर्द सब फील होता है। तो ये ब्रेन का पेन जो है, जब तक आप ब्लड सप्लाई नहीं वहां पहुंचाएंगे तब तक आराम नहीं आता। तो ऐसे के लिए भी आप P6 पॉइंट को दबा के देखें, बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि मैंने कहा आपको कि गैस्ट्रिक इशू बहुत हो रहे हैं, तो हो सकता है आफ्टर कोविड जिन्हें सर दर्द हो रहा है, ये पॉइंट आप जरूर दबा के देखें सर दर्द के लिए। उनका सर दर्द का आराम इसी पॉइंट से मैंने देखा मैक्सिमम मिल रहा है। इसके अलावा हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म, जिनको हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, जो वेट लॉस हो रहा है जिनका, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। साथ में एंजाइना पेक्टोरियस, ये भी आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है, इसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब आप कोविड में खास ध्यान रखिएगा, आपको बहुत से इश्यूज में समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है H5। H5 पॉइंट आप देखें, आपके रिस्ट फोल्ड से एक कुन नीचे करते जाए। एक कुन मतलब आपकी एक थंब के बाद से रिस्ट जॉइंट पे H7 है, नेक्स्ट कुन रखें तो H6 है, अगला रखें तो H5 है। ये पॉइंट खासकर मैंने कहा न्यूरो का प्रॉब्लम मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो पैरालिसिस भी हमने देखा बहुत सारा आ रहा है, क्योंकि ब्रेन में क्लॉट बन जा रहा है, हार्ट में क्लॉट बन जा रहा है, तो उसकी वजह से ब्रेन में क्लॉट बनने से पेशेंट पैरालिसिस का अटैक हो जाता है और बहुत लोगों के स्पीच की प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्पीच का इशू हो रहा है, आपने देखा पैरालिसिस के बाद उसके काफी चीजें ठीक हो गई, पर स्पीच अभी आने में टाइम लग रहा है, स्पीच नहीं ठीक हो पा रही। तो आप इस पॉइंट को प्रेशर दे दें। सामने इसी तरीके से आप
इंडेक्स फिंगर पे देखें तो इसका H5 पॉइंट आपके समझ ले थोड़ा सा ही रिस्ट जॉइंट, ये अपना फर्स्ट फैलेंज के थोड़ा सा ही नीचे H5 पॉइंट है। इसको आप मेथी दाना या कुछ भी लगा दें, ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं या कोई फंक्शन है हमारे घर में, शादी का त्योहार है, और हम खूब गाने वाने गाए तो भी गला खराब हो जाता है। तो ऐसे में तो आप दबाएंगे ही, हो सकता ठीक हो जाए, या नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट आपको बताया कि ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि अरे इतना इफेक्टिव पॉइंट था, फालतू मैंने दवाई खाई, एक पॉइंट में दबा देता तो मेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाता। इसके साथ ये कोविड से रिलेटेड तो नहीं है, पर हमारी न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें स्टेज पे जाते घबराहट हो रही है, सबके सामने पब्लिक में बोलने में हमें दिक्कत हो रही है, तो स्टेज फोबिया को ये ठीक करता है। इसके अलावा हमारे बच्चे जो 2 साल से स्कूल नहीं गए और अब अचानक स्कूल खुल गए और उन्हें एग्जामिनेशन का आ गया कि एग्जाम देने तो आपको स्कूल आना ही पड़ेगा, तो बहुत पेरेंट्स ने इसके अगेंस्ट में बोला कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो एग्जाम भी आप स्कूल बुला के ना करें, वैसे ही ले लें जैसे पहले चल रहा था। तो ये क्या है, ये भी एक फोबिया, एक डर है, ठीक है ना। ये क्योंकि नर्वस सिस्टम को हमें वीक कर दिया। तो यदि हमें ऐसा लगता है हमारा बच्चा एग्जाम देते हुए घबरा रहा है, डर रहा है, आप इस पॉइंट को लगा दें, उसकी वो घबराहट बिल्कुल निकल जाएगी। तो जैसे सब नॉर्मल चल रहा है वैसे चलेगा, बच्चा आराम से एग्जाम जाके दे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो हम लोग इसके बाद रख लेंगे सेशन जिसमें आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है लिवर 5। लिवर 5 पॉइंट लिवर मेरिडियन का पॉइंट है। ये आपको जॉइंट से इंडेक्स, ये मिडिल फिंगर पे आ गए और मिडिल फिंगर के जॉइंट से हल्का ही नीचे मिलेगा आपको पॉइंट, और पैरों में दिखाया हुआ है एंकल के 5 कुन ऊपर। 5 कुन मतलब आपकी ये जो 4 फिंगर हैं वो 3 कुन के जितनी है, और 3 कुन को 3 फिंगर्स को हम मिला लें तो वो 2.5 कुन बन जाती है, तो 5.5 हो जाएगा। उससे आप नीचे कर लीजिएगा 5 कुन। ये आपको सामने फिगर दिखाया हुआ है जहां रेड पॉइंट है, ये लिवर 5 को लोकेट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट लिवर का है। तो लिवर ही हमारी ब्लड की केमिस्ट्री को देखता है। यदि ब्लड की केमिस्ट्री गड़बड़ हो रही है, ईचिंग होने शुरू हो गई है, खासकर जेनाइटल ऑर्गन्स में, मेल हो या फीमेल, बहुत ज्यादा किसी को ईचिंग हो रही है जो आम मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रही है, आप सिंगल पॉइंट इसको प्रेशर दे दे तो इससे आपको आराम आ जाएगा। इसके अलावा यूबी, यूरिनरी ब्लैडर में क्रैम्प पड़ रहा है, उसकी वजह से आपको कमर में दर्द और सामने जांघों तक आ रहा है ये पेन, उसकी वजह से कैसा होता है कि जैसे जैसे ये पेन जिस तरीके से आता है, हम सोए होते हैं तो करवट भी लेना हमारे लिए मुश्किल होता है, ये भी प्रॉब्लम बहुत आई है। तो इस पॉइंट को भी ठीक करने के लिए लिवर 5। इसके अलावा गॉलब्लैडर में स्टोन की वजह से किसी को पेन आ रहा हो तो इस गॉलब्लैडर के स्टोन के पेन को भी ये ठीक कर सकता है। और हमारे यहाँ के जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको यूरिन के बहुत से प्रॉब्लम आ जाती है, उनको ऐसे लगता है कि यूरिन पे हमारा कंट्रोल नहीं रह गया और बूंद बूंद पेशाब निकलता जा रहा है। अक्सर सीनियर सिटीजन आते हैं और इस बात के लिए करते हैं कि हमारा कंट्रोल खत्म हो रहा है। तो इस कंट्रोल को खत्म करने के लिए भी आप इस सिंगल पॉइंट लिवर 5 को दबा के उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, SP4, स्प्लीन 4। ये आपके मिडिल फिंगर के बिल्कुल सेंटर में आपका ये जो रेस्ड पार्ट है उससे समझ लीजिए
कि एक मैग्नेट नीचे आ जाए या थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ का 1/4, इस पॉइंट पे ये पॉइंट है sp4। ये पॉइंट सामने लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल और फैट दोनों को कंट्रोल करता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बड़ा मिला लोगों को। जितने लोगों का आपने आफ्टर कोविड टेस्ट कराया, जिनको कोविड हुआ था, उनका कोलेस्ट्रॉल सबका बढ़ा हुआ मिला। तो उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, फैट को कंट्रोल करने के लिए, जिन्हें कोविड नहीं भी हुआ, 2 साल से सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो फैट बढ़ गया, उस फैट को कंट्रोल करने के लिए भी sp4 पॉइंट को आप लगा सकते हैं। एक मेजर इशू रहा कोविड के समय कि हमारा जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था, उनको सबको बहुत परेशानी हुई। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी आप इस पॉइंट को ठीक लगा सकते हैं। और बॉडी में कोई भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से फीवर आ रहा है, इसमें लगाएं। एक और सबसे ज्यादा दिक्कत आई आफ्टर कोविड, भूख खत्म हो गई, भूख को बढ़ाने का प्रॉब्लम, ब्रीदिंग में इशू आने लग गया, ब्रीदिंग को ठीक करने का पॉइंट, जिनको पसीना बहुत आता है वो ठीक करें, या मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई भी दिक्कत, खासकर जैसे पीसीओडी का इशू है, ओवेरियन कोई प्रॉब्लम है, ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो sp4 का आप यूज करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये पैर में आप कैसे ढूंढेंगे? पैर में आप सामने देखें कि आपकी जो मेटाटार्सल बोन है, मेटाटार्सल बोन का जहां पे यूनियन है, उससे थोड़ा सा पहले आप देखें कि एक हमारी गड्ढा सा बन जाता है, उस पे sp4 पॉइंट है। ये पॉइंट आप प्रेशर दे के भी डेली यूज कर सकते हैं, या एक मटर का दाना आप यहाँ लगा दें। आपके पास मैग्नेट नहीं है, मटर का दाना लगा दें। मैग्नेट है तो आप क्लस्टर मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट चेक करके लगा ले, तो ये आपको आराम दे देगा। और लगा के रख ले कि इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, काढ़ा नहीं पीना पड़ेगा हमें। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, K4 पॉइंट। K4 पॉइंट आप सबको दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट को हल्के से आप प्रेशर दबा के देख लीजिएगा, तो इजीली आपको क्लियर पता चलेगा, यहाँ पे आपको पेन मिलेगा। खासकर कोविड ने सबसे खराब चीज दी हम लोगों को, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर डाल दिया। बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आने लगा कि आगे क्या होगा, उसकी वजह से काफी नेगेटिव थॉट्स आए। या जिन्होंने हॉस्पिटल जाके फेस किए, लोगों की साथ वाले बिस्तर पर डेथ हो रही है, उनके अंदर भी बहुत नेगेटिव थॉट्स आ गए। तो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स भरने का आप K4 पॉइंट पे प्रेशर देंगे तो पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। इसके अलावा किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट आपके पाइल्स को ठीक कर सकता है। आप एड़ी पे इस पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे दबाते चले जाएं, जहां से एंकल आपका जॉइंट है, उसके बाद से नीचे दबाते चले जाएंगे तो K4 पॉइंट मिलेगा, और इसको दबाने से आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी उसको ठीक कर लेगा। और हाथ में देखें तो मिडिल फिंगर में टूवर्ड्स फिंगर साइड, ये जो फर्स्ट पैलेंज है उससे हल्का सा ऊपर की तरफ, या आप इसे नीचे ऐसे करके नीचे मानते तो नीचे, या इससे टिप की तरफ जाए तो यहाँ पे ये K4 पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ K4 का एक और अच्छी खासियत बात मैं बताना भूल गई आप लोगों को, कि ये पॉइंट
मैंने एक और इश्यू देखा, ये मेरे अपने घर में भी बहुत लोगों को हुआ कि लोगों ने अचानक खर्राटे लेने लग गए। सांस की जिनको दिक्कत आ रही थी और खर्राटे ले रहे थे, तो खर्राटे को ठीक करने का पॉइंट, सिंगल पॉइंट आप K4 को लगाएं। तो घर में जो साथ वाला सोता है और वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आती है, मेरे हस्बैंड बहुत खर्राटे लेने लग गए, या कोई बोलता है मेरी वाइफ बहुत खर्राटे लेने लगी है, नींद आने में दिक्कत आती है, तो आप सिंपल कुछ और ना करें, उनके K4 पॉइंट को डेली दबा दें, तो खर्राटे आने बंद हो जाएंगे। सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट, अब आ गया LI6 पॉइंट। ये पॉइंट आपके हाथ पे है, तो हाथ पे आपको सामने दिखाया जा रहा है, इसके अलावा आपको फिंगर पे भी दिखाया जा रहा है। LI मेरिडियन यांग मेरिडियन है, तो यांग साइड पे, नेल वाली साइड पे आपका ये फर्स्ट जॉइंट के बाद ये जो जॉइंट पे LI5 है, नेक्स्ट पॉइंट आपका LI6 पॉइंट है। ये पॉइंट आपके इधर से मेथी, और आप हाथ पे यदि लगा रहे हैं तो रिस्ट फोल्ड के बाद दिखाया जा रहा है आपको, है ना। रिस्ट फोल्ड के बाद यांग साइड, मतलब ये बाहर वाली साइड, यांग साइड पे ये पॉइंट हमें मिल रहा है। ये कोविड से बनने वाले, या आपकी बॉडी में वैसे भी म्यूकस बहुत बनता है, तो म्यूकस को खत्म करने का LI6 पॉइंट 1-2 दिन लगाने से ही ठीक होने लगेगा। और म्यूकस जहां जहां जमा है, जैसे किसी के कान के आगे जमा हो गया, किसी के सर पे जमा हो गया, तो ये जहां जमा है वहां उस जगह के म्यूकस को हटा देगा। तो जैसे कान की सुनने की आपकी प्रॉब्लम हो गई है, तो वहां से ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। साथ में लिखा हुआ है, आर्म में अचानक बहुत तेज दर्द आ रहा है, वो भी यांग साइड में, तो उस पेन को ठीक करने का, बहुत सारे लोग आते हैं ना, सर्वाइकल से यहाँ दर्द आ रहा है, या ऐसे पकड़ के आते हैं कि यहाँ अचानक पता नहीं क्यों दर्द हो गया, और वो भी सीवियर पेन। मैंने अपनी क्लास में बहुत बार आप लोगों को बताया कि हॉटनेस का पॉइंट जो होगा वो शार्प पेन देगा। जो तीखा दर्द है यदि हाथ में आ रहा है आपके रेडिएट होके, तो सिंगल LI6 पॉइंट को दबा देंगे, ये ठीक हो जाएगा। साथ में लिखा हुआ है एपिलेप्टिक सीजर्स, एपिलेप्टिक की प्रॉब्लम है किसी के घर में, तो आप इसको लगा सकते हैं। कम सुनने का साथ में आपने देख ही लिया, और एक्सेस एक्साइटमेंट का इश्यू हो रहा है कोविड के बाद से, तो LI6 पॉइंट को दबाने से ये पॉइंट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट, TW5 पॉइंट। ये पॉइंट, ये भी TW का यांग मेरिडियन है, तो यांग साइड पे आपको मिलता है। रिस्ट फोल्ड से 2.5 उंगली बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा साइड ले लीजिएगा, तो ये TW5 पॉइंट मिलता है हमें। फिंगर पे देखें तो इंडेक्स फिंगर में जॉइंट के बाद आपको ये पॉइंट मिल रहा है, TW5 पॉइंट। ये पॉइंट आपको हाथों में दर्द हो रहा है, खासकर सर्वाइकल का पेन आ रहा है, उसमें एक सिंगल पॉइंट दबाने से कभी कभी हमने देखा है कि पेन चला जाता है। या आपका एक हाथ उठ नहीं रहा किसी भी कारण से, ये हाथ रेज ही नहीं हो पा रहा, तो दूसरी तरफ के TW5 पॉइंट को दबा दें। दोनों तरफ मिलता है ये पॉइंट, तो दूसरी तरफ के पॉइंट को आप दबा देंगे तो ये ठीक होगा। फिर मैंने एक बात बताई थी कि कोविड की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बहुत आई, तो ये हमारी बॉडी के सारे, लिखा हुआ है खासकर हमारी किताबों में, कि ये सारे छिद्रों को खोल देता है। कॉन्स्टिपेशन हो गया है जो कि कहीं से ठीक नहीं हो रहा, TW5 लगाते लगाते कभी ठीक हो जाता है, क्योंकि आपका एनल भी होल है, एनल होल, उस होल को भी खोलने का पॉइंट, आर्टरीज के खोलने का, सारे छिद्र खोलता है, तो आर्टरीज के खोलने में भी कभी कभी TW5 बहुत काम आता है। तो हार्ट के लिए भी आप TW5 को दबा सकते हैं। तो सिंगल पॉइंट TW5 आपके हार्ट के लिए, आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए,
आपके सर्वाइकल के लिए ये एक सिंगल पॉइंट हमें बहुत यूजफुल है, इसको आप दबाएं, ये ठीक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट SI7, ये यांग मेरिडियन है, यांग साइड पे मिलेगा। यांग साइड मतलब ये वाले साइड, इसको हम यांग साइड कहेंगे। और टुवर्ड स्मॉल फिंगर की साइड, यांग साइड पे ये पॉइंट हमें मिल रहा है। आपको सामने से एक स्केल की तरीके से आपको हाथ का मेजर करना सिखाया है कि किस तरीके से हम हाथ को ऐसा मेजर करें। तो ऐसा ही 7 पॉइंट हमें मिल जाता है। और सामने देखें तो इंडेक्स फिंगर पे आपके बिल्कुल लगभग हाफ पे आप ये पॉइंट लगा दें। लगभग हाफ, हाफ तो नहीं होता पर लगभग हाफ ये पॉइंट दबा दें तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये जो स्ट्रेस आ रहा है कोविड की वजह से, सब तरीके का स्ट्रेस, सब तरीके से लोग डरे हुए हैं, कोई कैसा स्ट्रेस लेके आ रहा है, तो एक्सट्रीम स्ट्रेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस पॉइंट को दबाएं। मेंटल रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ठीक करने का ये पॉइंट है। इस पॉइंट को दबाने से हमारी ये प्रॉब्लम ठीक होती है। अगला जो एक वर्ड लिखा हुआ है स्टाई का प्रॉब्लम, ये कोविड से रिलेटेड तो नहीं है, पर आंखों में जिनको बिलनी या स्टाई का प्रॉब्लम हो जाता है, आप इस सिंगल पॉइंट से भी उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टमक 40, ये यांग मेरिडियन है, तो ये भी यांग साइड में, पैरों में यांग साइड आपको दिखाई हुई है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। आप पैरों पे इसको थोड़ा सा देख लें कि कहाँ मिलेगा। और हाथों में देखें इसको, तो हाथों में ये पॉइंट आपको मिडिल फिंगर में, ये जो आपके फैलेंज है, मिडिल फैलेंज, उसके बिल्कुल साइड में टुवर्ड्स फिंगर वाली साइड से हम नीचे आते चले जाएंगे और हल्का सा तिरछा हो जाएंगे। तो ये स्टमक 40 पॉइंट है। स्टमक 40 पॉइंट किसी भी तरीके बॉडी में लंप बनते हो, चाहे चेस्ट में लंप हो, पेट में लंप हो, या कहीं भी लंप बन रहा हो, खासकर चेस्ट और इसके लिए, एब्डोमेन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो ये बॉडी में से लंप को हटाता है। और जिनको बलगम बहुत बनता है, बलगम ना बने उसको रोकने का भी पॉइंट, जिसको बलगम बहुत बनता है तो बलगम को ठीक करने का भी पॉइंट। इसके साथ लिखा हुआ है कि अस्थमा का प्रॉब्लम, क्योंकि लंग्स की वजह से लंग्स खराब हो गए और वहां पानी बनने लगा और अस्थमा होने लग गया, तो ऐसे उसको भी ठीक करने का सिंगल पॉइंट है ST40। क्योंकि अस्थमा को कैसे ठीक होगा, जब बलगम खत्म होने लगेगा तो अस्थमा भी ठीक होने लगेगा, आप सांस ठीक ले लेंगे। फिर नीचे लिखा हुआ लंप एनीवेयर इन स्प्लीन एंड स्टमक मेरिडियन, इस मेरिडियन पे आपको कहीं मिल रहा है, चेस्ट में मिल रहा है, एब्डोमेन में मिल रहा है, उसको ठीक करने का ये सिंगल पॉइंट बहुत अच्छे से काम आता है। जैसे मैंने कहा कि लोग बहुत निराशावादी हो गए, तो कोई आपके सामने एक ऐसा पेशेंट है जो बहुत निराशा हो गई है और उससे पहले वो बहुत अच्छा था, आप कह रहे पता नहीं पहले कैसा था, ये तो इतना काम कर लेता, अचानक क्या हो गया। तो आप लोग कभी कभी गुरु और महात्माओं के पास जाते हैं और बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो आप देखते हो वहां से लौट के आते हैं और आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, ऐसे लगता है कि उन्होंने हमें वापस उसमें ले आए। तो आप भी पेशेंट को जब ये पॉइंट लगाएं तो उसकी निराशा दूर होगी, और साथ साथ उसे याद दिला रहे तुम पहले तो ये भी कर लेते थे, ये भी कर लेते थे, मतलब उनकी क्षमताओं को हम बताएं तो वो बहुत जल्दी वापस आ सकते हैं। तो ST40
उसको काम करने की प्रेरणा देगा और वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद एलर्जी का अस्थमा हो रहा है या थायराइड में भी लंप बन रहा हो, तो ये लंप ठीक करने का पॉइंट है ना। बहुत लोग देखे होंगे कि उनको लोगों को सर्जरी करानी पड़ती है इस लंप को ठीक करने के लिए। तो इस लंप को ठीक करने के लिए स्टमक 40 को लगाए तो वो ठीक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, गॉलब्लैडर 37 पॉइंट। मैं तो ये कहूंगी कोविड में सबसे ज्यादा यदि परेशानी आई है तो हमें गॉलब्लैडर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हमें सबसे ज्यादा दिखी है, क्योंकि गॉलब्लैडर मेरिडियन हमारी अपनी एक्यूप्रेशर थेरेपी के हिसाब से पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर रही है। तो आप लोगों ने देखा जनरली पेशेंट आ रहे हैं, या तो वो बोलते हैं मेरे सर के बाल जा रहे हैं, या कोई आया मेरी भूख बंद हो गई है, किसी को आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो गई है, वीकनेस फील हो रही है। तो ये पॉइंट आपका गॉलब्लैडर 37 पॉइंट पैरों में थोड़ा सा आप लोकेट करके ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा एंकल बोन है उससे उन्होंने आपको लोकेट करना सिखाया है कि किस तरीके से आप ले जा सकते हैं। 5 कुन ऊपर साइड में, लेटरल साइड में, गॉलब्लैडर मेरिडियन हमारे लेटरल साइड पे, तो लेटरल वाले एरिया की जो प्रॉब्लम है हम इस पॉइंट से इससे ठीक कर सकते हैं। गॉलब्लैडर 37 पॉइंट, और ये बहुत ही अच्छा, आंखों का तो सबसे अच्छा पॉइंट है। आई साइट से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो इसमें इस पॉइंट को आप लगा दें। फिर लिखा हुआ है एट्रोफी ऑफ काफ मसल। काफ मसल में एट्रोफी हो गई। एट्रोफी मतलब कि जब हम धीरे धीरे क्या होते हैं, डीजेनरेट होने लगते हैं। तो हमारे किसी भी कारण से पैरों में हम बैठ गए तो बैठ के उठ नहीं पा रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना पैरों से उठने में दिक्कत आ रही है। तो पैरों की एनर्जी को लौटाना, जैसे पैरालिसिस का पेशेंट है उसको भी उठने और बैठने में दिक्कत आ रही है तो भी आप ये लगा सकते हैं। घुटनों के दर्द की वजह से भी उठने बैठने में दिक्कत आ रही है तो पैरों के काफ मसल और इनमें कहीं आपको ऐसा इश्यू लग रहा है, उसमें भी आप गॉलब्लैडर 37 को, वहां की मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो गॉलब्लैडर 37 को लगाने से वो मसल प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं हम तो सारा दिन आजकल बैठते ही हैं, हमारी मसल्स बहुत कमजोर हो गई है क्योंकि वॉक नहीं की, हमने ऐसा नहीं किया। तो डेली आप गॉलब्लैडर 37 पॉइंट को दबाते रहे तो आपकी मसल्स इंप्रूव करने लगेंगी, खासकर पैरों की मसल्स इंप्रूव करेंगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप कैसे ढूंढेंगे वो देखा आपने। फिर यदि हमने हाथ पे लगाना हो, क्योंकि पॉइंट्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये आपकी मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर दिखाइए, मिडिल फिंगर के आप नीचे आ जाएं तो ये सेंटर ही एक तरीके से बन जाता है गॉलब्लैडर 37 पॉइंट। इस पॉइंट पे आप एक मेथी दाना लगा दें तो पैरों की मसल्स, आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम आपको इससे ठीक होती हुई लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, UB58 पॉइंट। ये पॉइंट आपके पैरों में पीछे की तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। UB58 पॉइंट पैरों में पीछे की तरफ है, और हाथ में देखें, ब्योल देखें तो इन दोनों उसके सेंटर में, साइड में, टूवर्ड्स फिंगर वाली साइड आपके सेंटर पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का 58 पॉइंट। कोविड में बहुत सारी मेडिसिन खिलाई गई जिसमें आपके बहुत सारे लोगों को जिनको शुगर या ऐसे कोई इश्यू थे तो उन्हें किडनी का प्रॉब्लम हो गया, किडनी फेल करने लगी, किडनी फेल की और वाटर रिटेंशन होने लगा बॉडी में। तो उस वाटर रिटेंशन को ठीक करने का पॉइंट
यूरिनरी ब्लैडर 58 को पैरों में सूजन आ रही है, पानी आपने पैर को दबा के देखा तो पिटेट टाइप स्वेलिंग हो रही है, दबाने से वहां पे निशान छोड़ दे रही है, तो ये पता चला कि पानी भरने लगा है शरीर में, ऐसी जगह आपको दिखाई दे रहा है। तो UB58 पॉइंट, इसको दबाने से वाटर रिटेंशन कम होगी। इसके अलावा नाक की प्रॉब्लम बहुत रही, किसी को नाक से पानी बहुत निकलता है, खासकर ओमिक्रॉन के बाद। ओमिक्रॉन में तो ये बहुत प्रॉब्लम रही कि लोगों को नाक से पानी ऐसा निकल रहा था जैसे नल स्टार्ट कर दिया हो किसी ने, इतना पानी निकल रहा था। तो नाक से पानी निकलने का पॉइंट, यहाँ इवन नोज ब्लीडिंग भी कर रही है, उसमें भी आप एक सिंगल पॉइंट UB58 को लगा दें। और कभी कभी खड़े होने से, क्योंकि पैरों में जान नहीं है, तो खड़े होने से पैर कांप रहे हैं, उसके लिए भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। पैरों में ताकत आ जाएगी और एक्स्ट्रा वाटर पैरों से निकल जाएगा। तो धीरे धीरे यदि पानी निकलने लगेगा, जमा नहीं होगा, तो किडनी भी आपकी ठीक से काम करने लगेगी। तो UB58 पॉइंट आपके वाटर रिटेंशन को ठीक करने का पॉइंट है। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से सारे हो गए शायद। थैंक यू सबको। और ये पॉइंट आप कोविड के यूज करके देखे, मैंने पूरे 2 साल में काफी इन पॉइंट्स को यूज किया डिफरेंट तरीके से, तो बहुत काम आया। आप लोग भी यूज करके देखें। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोरोना की वजह से कुछ ऐसे इश्यूज हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं आपको, मैम को बोलती हूँ कि आप सबको कोई हैंड रेज करता है तो उनको अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Now, please, anybody having any problem, you are most welcome to ask. Any personal problem, any friend's problem, which you want to get the clarity on. I think you have been unmuted. You can unmute yourself and then you can ask. I cannot see the raise of hands. विभा मैम 4 लोगों ने रेज किया हुआ है। हाँ, 5 ने रेज कर 5 हो गया। हाँ, बट मेरे पास वो रेजिंग हैंड का वो नहीं आ रहा है, तो आप इसे अनम्यूट करके आप कर लीजिए, अपने आप पूछ लीजिए। मेरे पास रेज हैंड्स का वो आ ही नहीं रहा है। तो मैम आप पूछिए आपका क्वेश्चन। आप पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार मैडम, मैं इंदु जैन बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते मैम। जी मैम। मैडम आपने एक पॉइंट बताया ना कि किसी को यूरिन बहुत आता हो और कंट्रोल नहीं कर पाता हो। हाँ, खासकर सीनियर सिटीजन जो बूढ़े लोग होते हैं। लेकिन यंग एज में भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे रात को किसी को टॉयलेट जाना पड़ता है, उसके लिए कोई ऐसा पॉइंट है कि यंग एज में रात को जैसे उठने में बच्चों को दिक्कत आती है, 35 इयर्स के अराउंड हो? हाँ हाँ,
रात में उठने के समय उनको दिक्कत आती है। एक्चुअली क्या मतलब होता है, वैसे तो रात को हमें यूरिन आना ही नहीं चाहिए, अच्छा हाँ जी, सिम्टम तो यही है मैम, है ना। हाँ हाँ हाँ। पर उनको उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है रात में उठने के साथ? ये तो ऐसे ऐसा तो नहीं है, वैसे नॉर्मली माइग्रेन रहता है और हाँ हाँ, ये मैम ये गॉलब्लैडर 37 से ठीक हो जाएगा, ओके। है ना। और लगाना चाहें तो लिवर 5 भी लगा सकते हैं। ऐसे लोगों को ये गैस्ट्रिक होता है, तभी मैं आपसे और सिम्टम पूछ रही थी। तो ये हाँ उनके माइग्रेन के पेन को भी दूर कर देगा और साथ में उनके गैस्ट्रिक इश्यूज को भी ठीक कर देगा, जिससे ये यूरिन उनको रात में आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है ना। मतलब उसके लिए GB37। हाँ, GB37 लिवर 5 को दोनों को आप कर सकती हैं, तो दोनों लगाने से उसको ये रिलीफ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू और मैडम। इंदु जैन मैम, आप तो जानती है कि प्रोब से हम पॉइंट को देख सकते हैं, तो जिस वो पॉइंट पे उससे ज्यादा मिल रहा हो, खासकर ये GB37 का ही प्रॉब्लम होगा, तो GB37 लगाने से ही जाएगा, है ना। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू। 90% चला जाएगा। ओके, और भी कोई पूछना चाह रहा है? निर्मल जैन, हाँ जी जी, आप निर्मल आवाज आपकी ब्रेक हो रही है निर्मल जी। कोई और क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग खुद ही अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। विभा हो मैम रही करिए। मैम, हो गई, हाँ। हाँ मैम मेरे को ये पूछना है, मेरे को ओमिक्रॉन हुआ था अभी, तो जी मेरे जी को ये जी, पूछना है, मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है, हाँ हाँ, तो तो इसके लिए बैक पेन के लिए भी आप UB58 पॉइंट को लगा दें। UB58। हाँ, तो बैक पेन जाने लगेगा आपका। और ये मतलब जैसे आपने वो बताया था साइनस का, तो हाँ ये हाँ एक राइट साइड कान के पीछे ये भी दर्द होता है मतलब, ये भी हाँ, अभी हुआ है रिसेंटली। ये रिसेंट हुआ है ना, तो ये अभी हाँ। मैंने बताया आपको कि ये UB58 से जाने लगेगा, ठीक है ना। ये हाँ जी। साइनस का इशू भी चला जाएगा, और साथ में वो जो कमर दर्द आपकी बनी हुई है, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर को ही ठीक करता है, और हमारे यहाँ पे पूरी यूरिनरी ब्लैडर ही आपकी बैक को देखती है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर का इशू है। UB58 लगाने से आपके एक साथ सारी प्रॉब्लम निकल जाएंगी। सिंगल पॉइंट लगाइए मैम, ओमिक्रॉन हुए मेरे ख्याल से 1 या मैम 2 ये महीने। कैसे लगाएं, ये मैंने कभी किया नहीं है। कोई बात नहीं, आप मेरा हाथ देख रहे हैं, हाँ जी। है ना। ये मिडिल फिंगर है मेरी, दोनों हाथ हाँ में जी। काम करेगा ये दोनों। ये आपकी मिडिल फिंगर में टुवर्ड्स फिंगर साइड, आप सेंटर में आपके पास कोई पेंसिल या ऐसा कुछ हो, ये नहीं भी होगा आपके ओके। पास, हाँ तो पेंसिल रहती है ना मैम, आप इस पेंसिल से थोड़ा सा हल्का सा ऐसे घुमा के देखें, जहां पे आपको ये पॉइंट मिलेगा पेनफुल, उस पॉइंट पे एक मेथी दाना बांध दें। अच्छा, तो कितनी देर बांधना है मैम? रात को लगा के सो जाए, मॉर्निंग में रिमूव कर दें। हो सकता है अच्छा। क्योंकि ये 2 महीने का ही प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, आप हफ्ता भर ही शायद लगाएं तो पूरा ठीक हो जाएगा, तो कमर ये दर्द भी मतलब निकल टेप जाएगा। से बांधे उसको, मेथी दाना लगाकर टेप अब से हो गया, बांधे? अब हो हाँ गया, हाँ अब हो हाँ, ठीक है ना। सिंगल पॉइंट मेथी दाना टेप से, टेप बाजार में मिलती है आपको, ये ऐसी पेपर टेप होती है, मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पैरों में कुछ पॉइंट ढूंढने में दिक्कत आएगी, पर जो कुछ लोग सीखे हुए हैं, मैंने उनके हिसाब से भी बताया और आपके हिसाब से भी, तो आप क्या करें, ये ऐसे टेप ले लें और टेप पे एक मेथी दाना लगा दें। घर में मेथी हमारे सबके पास रहती है ना। यदि मेथी भी नहीं है, घर के बाहर कंकड़ पत्थर तो मिल ही रहे हमको, है ना। एक छोटा सा पत्थर का दाना, कंकड़ का दाना ऐसे टेप में लगा दे आप। वैसे तो मेथी दाना सबके घर होगा, नहीं होगा तो सामने ही जैसे टेप लेने जाएंगे, वैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट आप डेली ऐसे करके लगा दी। ये देखिए मैंने लगाया है UB58 पॉइंट। ये कमर दर्द, नाक से पानी आना, ये सब आपका रोक देगा, ठीक है। नेक्स्ट आप पूछे। मुझे एक चीज पूछनी थी, मैं करुणा बोल ठीक रही है, हूँ। जी जी मैम। कि ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें हाँ, कलर्स लगाने बड़े सिंपल होते हैं, अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम कलर्स लगा सकते हैं तो वो जरूर बता दिया करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो UB58 एक्चुअली क्या है कि मैम कभी ये ना टोन करने पड़ते हैं, कभी सेडेट। जी लोग जी क्या करेंगे कि मैंने जैसे जो जनरल ऐसे बता दिया, ये ठीक करता है, अब जी। वहां पे कभी टोन करना पड़ता है, कभी सेडेट, सीरियस। तो वो कलर भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं।
तो जी ये लोग नए लोग हैं, तो कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। तो सबसे सेफ चीज मैंने मेथी सोची, नहीं ये मेथी मेथी दाना लगा दें, जी है ना, ये सिंगल पॉइंट ऐसे मेथी दाना लगा दें। जी। जैसे मेरे फादर जो हुई इज मोर देन 80 और उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये काम करेगा? ये आपने एक पॉइंट बताया था। करेगा, बिल्कुल करेगा। आपने फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के पॉइंट्स बताए हुए हैं मेरे ख्याल से। मैम लिवर 5 था, लिवर 5 था जी यूरिन। जी मैम, है ना, पर मैम उनके साथ यदि कुछ और भी सिम्टम हो तो बताएं। प्रोस्ट्रेट का प्रॉब्लम है, हाँ एनलार्ज प्रोस्ट्रेट। अब जब 80s में है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ 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 प्रोस्ट्रेट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम है व्हिच इज मच कंट्रोल्ड बाय मेडिसिन, लेकिन मैं सोच रही थी अगर कुछ एक्यूप्रेशर। हाँ, तो ऐसे में मैम आपको लिवर 5 तो लगाना ही पड़ेगा, साथ में यूरिनरी ब्लैडर का 58 भी लगाना पड़ेगा, जी क्योंकि अभी मैंने बताया ये वाटर को खासकर कंट्रोल करेगा ना। जी तो ये जो उनको प्रॉब्लम हो रही है प्रोस्टेट से भी हो रही है, तो ये जी प्रोस्टेट को भी ठीक करेगा। लिवर 5 आपके प्रोस्टेट को ठीक करेगा, साथ में ये आपके जो यूरिनरी ब्लैडर का 58 पॉइंट है, तो यूरिन जो फ्रीक्वेंट हो रहा है उसको रोक लेगा ये। जी ठीक है ना, वहां पे आप दोनों पॉइंट लगाए उनको। हाँ, लेकिन मैम आपने बोला था UB58 वाटर रिटेंशन कम होगा, तो वाटर जब रिटेंशन कम होगा तो वो वाटर पूरा बॉडी से निकलेगा फिर तो। हाँ मैम, हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि जैसे हम लोग बहुत बारी क्या करते हैं, सेडेट कर देते हैं उस पॉइंट को, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमने नल खोल दिया और पानी यूरिन आता जाता है। कभी कभी इतना पानी निकल जाता है कि मतलब आपको पानी की कमी हो जाती है शरीर में। जी तो इस समय इसीलिए बहुत ध्यान देने वाली होती है, तभी मैंने कहा कि मैंने कलर इसीलिए नहीं बताया आप लोगों जी को, जी जी बिल्कुल नहीं है ना। आप। तो मेथी दाना तो ऐसा है ना कि अब आप लग रहा है कि भैया अब तो यूरिन जा जाके अब थक गए हैं। तो जैसे ये बीपी में भी, जब बीपी बहुत हाई हो जाता है क्योंकि वाटर रुका हुआ होता है किडनी की वजह से, तो बीपी भी बहुत हाई हो जाता है। जी तो ये लगाते ही अब आपको लगता है कि बीपी नॉर्मल आ गया और यूरिन इतनी बार हो गया, बीपी नॉर्मल आ गया, आप तुरंत मेथी दाने को हटा दें। जी ठीक है ठीक ना। जी जी तो ये बहुत इसीलिए इजी हो जाता है। तो मेथी दाना आप लगा जी दें ठीक तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। जी और जेंट्स को तो खासकर रात में सोते हुए, मतलब प्रोस्टेट का इशू जिनको होता है वो बहुत परेशान होते हैं रात में, जी तो उनको ये 2 पॉइंट लगा कर सुला दें, उन्हें बहुत आराम आएगा। ठीक राइट मैम ठीक ओके है। थैंक यू। मैम और तो अगर हेलो मैम, हाँ अगर जी जी बच्चे जैसे बेड वेटिंग करते हैं, छोटे हाँ बच्चे अबाउट 6 इयर्स ऑफ एज, तो हम्म उनके लिए भी ये लिव 5 करना पड़ेगा क्या? बिकॉज वो नहीं 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 केमिकली नहीं नहीं नहीं, वो उनको एक्चुअली क्या होता है, इन बच्चों में किडनी की डेफिशिएंसी होती है मैम। किडनी कमजोर होती है, इसलिए इनका बेड वेटिंग हो जाता है ना। तो ऐसे में किडनी की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने पड़ते हैं। या आप सब जानते हैं जहाँ पे ये सीवी मेरिडियन है आपकी, CV 1 और 2 के बीच में आप मूलाधार चक्र होता है, आप उस चक्र पे ब्लैक कलर लगा दें, तो उसकी वो जो वीकनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और उसका यूरिन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो बच्चे का है, बेड वेटिंग है, वो सब कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप कलर से लगाना चाहती हैं तो ब्लैक कलर लगा दें बड़ा सा, वहां पे मूलाधार चक्र है, CV 1 2 के ऊपर, 1 2 3 के ऊपर आपका मूलाधार चक्र है, वहां पे बड़ा सा बिंदी जैसा आप ब्लैक कलर लगा दे, ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम, because I have tried orange color, yellow color, nothing is working. K3 हाँ। point is also not working. मैंने नहीं नहीं, आयुर्वेदा point वो किया है, वो nothing is मैम working. थोड़ा सा K3 पॉइंट को लंबा चलाना पड़ेगा, क्योंकि K3 अकेला पॉइंट किडनी की डेफिशिएंसी को कंट्रोल नहीं, किडनी की डेफिशिएंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसके लिए अपने को 2-4 पॉइंट और बढ़ाने पड़ जाते हैं। तो किडनी की डेफिशिएंसी वाले पॉइंट्स लगा दूं? हाँ वो लगा दें, आपको आते हैं तो किडनी की डेफिशिएंसी के लगा दें, नहीं तो मूलाधार चक्र पे ब्लैक कलर लगा दें तो ठीक हो जाएगा। है ना। ओके, थैंक यू। Excuse me, ma'am. नमस्ते मैम। जी 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 मैम जी मैं जी जी पूनम बता हाँ हाँ बेटा बोल बच्चे। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे किसी को ना मतलब बहुत ज्यादा सपने आते हैं हाँ हाँ और रात को सोते टाइम मतलब एज हो गई है 40-50 प्लस,
लेकिन उनको जो सपने हैं वो 20 साल वाले में जो भी हुआ है वो रात को ही आते हैं, उस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती और ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे मार रहा है या कोई मुझे पकड़ के ले जा रहा है, इस टाइप से सपने आते हैं। तो उसके लिए मैम कुछ बताएं। हाँ देखो पूनम, पहली बात तो बेटा कि सपनों के लिए भी मैक्सिमम हमारा हार्ट जिम्मेदार होता है ना। थोड़ी थोड़ी बात तो मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कोर्स कर रहे हो बेटा तो थोड़ा समझ में आएगा। तो यह हार्ट कंट्रोल करता है, फिर ब्रेन को कंट्रोल करने वाला भी बेटा हार्ट ही होता है। तो ऐसे में हमें कौन सा पॉइंट लगाना पड़ेगा बच्चे, अब आप बताओ। हार्ट 5 बेटा है ना, और इसका पेयर ऑर्गन है SI7 बेटा। तो आप दोनों पे प्रोब घुमा के देख लो बेटा, जिस पे आपको पेन मिलेगा, जैसे आपने अपना प्रोब घुमाया बेटा, ये ऐसे करके आपने प्रोब घुमाया, SI7 पे आ रहा है कि H5 पे आ रहा है, या यहाँ दबा के देख लिया, यहाँ पे H5 को दबा के देख लिया। यदि पेन आ रहा है तो आप एक मैग्नेट क्लस्टर या एक मटर का दाना लगा दो, तो उसे सपने भी कम हो जाएंगे और वो जो पुरानी बातें हैं ब्रेन से निकल नहीं पा रही हैं वो भी निकल जाएंगी बेटा। मैम H5 पे लगाना, H5 और SI7 दोनों पे लगाना नहीं, और मतलब या तो ये या वो है ना, कोई एक लगाना है। जनरली आपको H5 पे ही उसे मिलेगा, आप H5 लगा देना बेटा, है ना। मैम इस पे मूंग का दाना भी लगा सकते हैं, जो साबुत मूंग होता है बेटा। मूंग में क्या होता है कि टोन और सेडेशन होते हैं बेटा, इसीलिए मैं मूंग नहीं बताती। मूंग, गेहूं, इन दानों में बेटा टोन सेडेशन होता है, इसलिए आपको मेथी जो न्यूट्रल होता है उसको प्रेशर देने के लिए बोलते हैं, यूज करते हैं हम लोग। या कंकड़ पत्थर, आपको मेथी नहीं है घर में तो बाहर, घर के बाहर कंकड़ पत्थर तो बहुत मिल जाते हैं बेटा, एक छोटा सा पत्थर का ठीक है बेटा। मैम इसी बात पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हाँ, मैं सेकेंड वेरिएंट में हॉस्पिटलाइज हुई थी कोविड में और 15 डेज रही थी। बस इतना यकीन था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं मजाक मजाक में हॉस्पिटलाइज हो गई थी। हस्बैंड ने कहा तुम्हारा जो है चलो चेस्ट का एक्सरे करा दो। मैंने मुझे क्या होगा, मैं तो पॉइंट्स लगा ही रही हूँ और घर में सभी को लगा रही थी। लेकिन मेरा जो है लंग्स का जब उन्होंने एक्सरे करवाया तो उसमें इन्फेक्शन दिख रहा था। तो हस्बैंड कहने लगे नहीं नहीं तुम्हें जो है प्रॉब्लम ज्यादा है और हम लोगों का ठीक है, इसलिए तुम्हें जो है डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं। मैंने कहा ठीक है ले चलो। मैं चली गई ऐसी। लेकिन वहां जाने के बाद एकदम से जो है पता नहीं क्या हुआ और विद इन 1 घंटे के अंदर ही मुझे ऐसा लगा कि जो है अब मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो उस समय तो हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, बाकी सब चीजें कुछ भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे एडमिट करवाया उन्होंने किसी तरीके से मैनेज करके। वहां जब गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कलर थे ना जो है टेप था, कुछ भी नहीं था। और मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा था कि मैं कुछ सोच पाऊं उस समय। तो बस मुझे याद आ रहा था कि मुझे कुछ दबाना है और मैं क्या कर रही थी, अपनी सारी उंगलियों को यूं यूं यूं, बस मुझे ये लगे कि बस अपने हाथों में ही है मेरा। मुझे बस आपके वो वर्ड्स और सर के वर्ड्स, अग्रवाल सर के वर्ड्स कि आप अपने हाथों से अपना इलाज कर सकते हैं, बस इतना ही कानों में गूंज रहा था। और उससे ही मैंने अपने हाथ, डॉक्टर्स कह रहे हैं आप कर क्या रही हैं, वो मुझे वीगो लगाते थे, डेली लगती थी मुझे, एक वीगो डेली मेरी खराब होती थी। और सिर्फ इस वजह से कि मैं जो है वहां कुछ कर नहीं पा रही थी। आपने जो ये कहा कि कंकड़ पत्थर तो मिलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कंकड़ पत्थर भी नहीं मिलते आपको, तो आप अपने हाथों से ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और मुझे पॉइंट्स भी नहीं याद आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ कि मुझे रब करके, मुझे ये पता था कि यहाँ मेरे लंग्स हैं, यहाँ जो ऑर्गन्स हैं मुझे वो तो पता थे कि मुझे यहाँ पर करना है, उंगलियों में करना है, कि किसी तरीके से उनको रब कर करके मैंने जो है अपने आप को ठीक करने की कोशिश की। फिर जब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा अपने उसमें आई तो चुपके से मैंने जो है हस्बैंड को बोलकर किसी तरीके से मैनेज करके, क्योंकि बाहर से वहां कोई भी सामान हम लोगों के वार्ड में
अंदर नहीं आ सकता था। तो उनसे मैंने किसी तरीके से मैनेज करके दवाइयों के बीच में फोल्ड करवा कर कि आप मुझे कलर भेज दो, और कलर्स से जो है वहाँ से जो है मुझे प्रोटोकॉल भेजा गया, तो वो मैंने कलर लगाने शुरू किए। वहाँ का स्टाफ कह रहा, आप क्या करती रहते हो, ये हम आपके ये जो है कलर्स हटाते हो और आप लगा लेते हो। तो मैंने उनको बताया कि ये जो है मेरी थेरेपी है और इससे मैं अपने आप को जो है ठीक कर रही हूँ। क्या अच्छा, आप तो जो है हम आपको 2 दिन पहले आईसीयू में एडमिट करने वाले थे और आपने जो है यहीं बेड पे ही रह के अपने आप को ठीक कर लिया। तो ये कई बार ऐसा होता है कि आपके पास मतलब कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप अपने हाथों से अपना इलाज कर प्रयास सकते हैं। बिल्कुल पुष्पा, बहुत अच्छा बोला आपने बेटा। आप सबको से पुष्पा शायद ये लाइव बता रही है, इसकी हालत हम लोगों ने सबने देखी थी, शायद यस ने अपने ग्रुप में डाल दी थी कि मैं ऐसे कोविड की वजह से हॉस्पिटल में हूँ और मेरी हालत ये हो रही है। नहीं, मैंने तो ग्रुप में नहीं डाला था, मेरी अपनी क्लासेस चल रही थी सेमेस्टर। हाँ, तो उसके थ्रू ग्रुप में आ गया था बेटा। हाँ, तो और वो बस मैं मास्क लगाकर और वही हॉस्पिटल से ही लाइव जो है, जैसे अभी मैंने कैमरा ऑन कर रखा है वैसे ही कैमरा ऑन कर रखा था, और इलाहाबाद सेंटर से सर ने देख लिया था, कुछ और लोगों ने भी देखा था। तो उन्होंने फिर सर ने मुझे जो है वहाँ के एपी सिंह सर हैं, उन्होंने कॉल किया मुझे किसी तरीके से सर्च करके और मैसेज किया कि आपकी कोऑर्डिनेटर कौन है। तो मैंने बताया था कि रमोला मदनानी है। तो कह रहे आप तक हेल्प कैसे पहुंच सकती है, आप ये बताइए, आपके घर में कोई है जानने वाला जो है आपका ट्रीटमेंट कर सकता है। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही हूँ स्टूडेंट और हस्बैंड को मैं बुलाना नहीं चाहती थी, अगर मैनेज करते तो हो सकता है कि वार्ड में आ जाते वो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ही करूंगी जो कर सकती हूँ, तो आप मुझे ऐसा कुछ बताइए जो मैं खुद कर पाऊँ। तो उन्होंने कलर थेरेपी से मुझे भेजा था चार्ट बनाकर, तो वो मैंने किया था। वेरी गुड बेटा, क्योंकि ये कोविड के टाइम पे हम लोगों ने इतने लोगों को चार्ट भेजे थे बेटा, सभी लोगों को हम चाह रहे थे कि कोविड से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कलर से, मेथी से, किसी तरीके से हमने सबको भेजे थे। तो उसमें से पुष्पा जी भी एक बार ऐसे हम लोगों को उसमें आ गई थी। सर ने भी देखा और मुझसे बात की। मैंने कहा हाँ सर, ऐसा उसका पता चला कि अभी हॉस्पिटल में है, तो कैसे उसको मैसेज वो किया जा सकता है। तो किसी तरीके से इसको मुझे बचाने में तो मेरे गुरुजनों का ही हाथ है। उसके बाद ये बच्ची जब ठीक होके आई थी 15-20 दिन के बाद, तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। यस, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं वॉकर से चल रही थी, वॉकर से मुझे वॉकर का सहारा लेकर चलना पड़ता था। तो इसको हम लोगों ने 7-7 पॉइंट्स देते गए और आज ये पुष्पा बिल्कुल ठीक है। और बहुत इसको स्वेलिंग अभी थोड़ी सी रह गई है, तो ये जो स्वेलिंग है ये थोड़ा सा बड़ा है, जैसे अभी मैंने बताया कि फेस पे स्वेलिंग भी आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो हम कौन सा पॉइंट लगाएं, या फैट बढ़ रहा है तो कौन सा पॉइंट लगाएं। ये 1-2 पॉइंट और लगा लेगी, तो ये पुष्पा मुझे मालूम है बहुत बड़ी फाइटर है, ये वहां पे भी उसको भी ठीक कर लेगी जो बचा हुआ है इसका। ये आज बहुत हमारे 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट क्लियर कर चुकी है। जिसके सर पर उसके गुरुजनों का हाथ तो नहीं। इस पर भी नहीं छू सकता है। मैम, ये मैंने महसूस किया है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मैंने तो फील किया है इसको। ये बहुत अच्छा। जी विनीता जी बताएं। मुझे ये था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को काफी कॉफ चल रहा है, तो आपने बोला था साइनस के पॉइंट्स भी लगा लो, और मैं वो प्रिवेंटिव भी लगा रही हूँ जो कोविड के हैं पॉइंट्स ब्लैक कलर के, उसका हेल्प तो है, बट आई फील वेरी अनईजी कॉफ, स्पेशली व्हेन आई एम लाफिंग और टॉकिंग फॉर मोर देन 3-4 मिनट से ज्यादा, तो कॉफिंग शुरू हो जाती है एंड इट्स कमिंग फ्रॉम चेस्ट, अनईजीनेस है बहुत, और मुझे लगता है कि मैं ब्रीथ भी अच्छी तरह नहीं कर पा रही हूँ, आई फील वीकनेस। नहीं तो जैसे विनीता जी मैंने बताया ना, साइनस से क्या होता है कि जब वो हम कोई भी मेल्ट करा रहे हैं, है ना, तो साइनस का जो आपके सर से कचरा आ रहा है वो पुराना हो चुका है, वो खराब हो चुका है, इन्फेक्शन वाला है ना। तो उसमें जब वो नीचे आएगा तो वो गले को भी इरिटेट करेगा, इरिटेशन देगा आपको, है ना। तो आपको शुरू में ऐसा लग रहा है कि मैं उसको वो नहीं कर पा रही, तो आप LU7 पॉइंट लगा दें। LU7 दिस इज मोर इन द चेस्ट पे मुझे लगता है कि जैसे मुझे कुछ इन्फेक्शन है,
So, तो LU7 के साथ P6 भी लगा ले। P6 भी लगा दूं। सो हाँ। मेथी दाना ही लगा दूं या सेडेट कर दूं, क्या करना है? नहीं नहीं, आप मेथी दाना लगा दे, और आपको Okay. पता है कि आपका बीपी हाई है, तो P6 को आप 100% सेडेट कर सकती हैं, ओके ओके है ना, ओके। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये लो बीपी को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये आपके फ्रेश ब्लड को सर पे भेजेगा, सर पे हाँ। भेजेगा, तो यदि हाँ। हाई बीपी है तो फिर इसको आपको सेडेट करना पड़ेगा, लो है तो टोन करना पड़ेगा। और फिर जो LU7 LU7 को भी सेडेट करना पड़ेगा। LU7 को भी सेडेट करना पड़ेगा। जी जी जी। ओके। और आपने बताया था कि LY3 एंड LY13 14 से वो मुझे ना पॉइंट्स बहुत क्लियर नहीं आ रहे हैं, इसलिए आज मैंने अच्छा, ग्रुप अच्छा। में वो बिंदी लगा के किया था। मैं हाँ If you can हाँ just show me. मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए हाँ। मैम, ये मेरा ये वाला ये है ना, फोल्ड है, हाँ कप जॉइंट है मेरा, है ना, हाँ उसकी ये जो बोन है, उसके एक नीचे एक ये ऊपर, ओके एक ये नीचे और एक ये ऊपर, ये देखिए ओके मैम, दिख रहा है मेरा हाथ? हाँ बिल्कुल हाँ। हाँ, इन 4 पॉइंट पे आप मेथी दाना भी लगा देंगी तो ये लिम्फ का है, साइनस के कचरा साफ करेगा। साथ में एक पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, TW16A पॉइंट है ना, TW16A, ये कान के पीछे वाला पॉइंट, ये आपके सर से, साइनस कहाँ पर है, सर के इधर ही तो है या फ्रेज पे है, तो यहाँ पे भी इस जगह पे, यहाँ पे दबाने से ये कफ बाहर आ जाएगा। तो कफ बाहर आएगा तो शुरू में आपको खांसी इरिटेट कर सकता है, यदि इरिटेट ज्यादा हो रही हो तो LU7 को आप लगा दें तो वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये मेल्ट होके बाहर हो जाएगा। ठीक है, साथ में LY3 लगा सकती हैं आप। मैम मुझे आपको एक फीडबैक देना था। जी जी जी। आपने करुणा जी आपने मेरे हस्बैंड के लिए वो स्लीप एपनिया के पॉइंट्स लगाए थे। जी तो जी। मैं आपको बता नहीं सकती, वो एक दिन के अंदर मैंने बड़ा ढांढस रखा कि मैं आपको 3 दिन के पहले नहीं बताऊंगी, 3 दिन देख लेने दीजिए मुझे। मैं 3 दिन के बाद में आज आई कैन गिव यू अ फीडबैक। उनका जो स्लीप एपनिया था, जो मुझे इतना स्कैरी लगता था, वो डिग्रेड होके अब इट हैज बिकम अ नॉर्मल स्नोरिंग। 3 वेरी दिन गुड। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, और मेरी भी घुटने के दर्द में बहुत फर्क है। अब मैं बहुत देख चुकी हूँ कि मैं बहुत जल्दी बोल देती हूँ, फिर उसके बाद में वो वैसा का वैसे ही हो जाता है। अभी आई वांट टू टेक मोर टाइम। नजर लग जाती है मैम, तो नजर लगाने का भी आप, मेरी लग जाती है। नजर लगने का भी एक पॉइंट है अपने पास, है ना, नजर ना लगे। अच्छा। तो हम ये पॉइंट लगा दें, हमारे 3 चक्रा है। मैम एक, हाँ, मैं अभी शो कर रही हूँ आप लोगों को, इन पर ब्लैक ऐसे कलर लगा दें। मेरा हाथ दिख रहा है सबको? आप राउंड भी कर सकती है, 3 राउंड बना दें, 3 स्टार बना दें, जैसे भी आपको ठीक लगे। ये नजर नहीं लगेगी, हम लोग कहते हैं इस पर नजर नहीं लगती। छोटे बच्चे को लगा दें, ये बेसिकली इम्यूनिटी के पॉइंट है। जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो नजर लग जाती है, तो ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के एक और कलर से पॉइंट है। मैम एक LY3 का भी आप बता देंगे, एक पॉइंट LY3 लोकेट, क्यों मैं लगा तो रही हूँ बट आई एम नॉट श्योर। हाँ, ये है LY3, ये आपकी इन यांग लाइन है, यहाँ से हम नीचे आए, पहला पॉइंट हमारा LY2, फिर 2A, फिर 3। ठीक है, प्रोब से विनीता जी प्रोब जरूर लगा के चेक करिएगा। ओके, प्रोब लगा पॉइंट मिलेगा आपको, और हाँ। डॉक्टर वॉल के पॉइंट पे यदि आप तुरंत मतलब प्रॉपर लोकेशन देके आप पॉइंट को करती हैं तो आपको रिजल्ट भी बहुत फास्ट मिलेंगे, तो प्रोब जरूर चलाइएगा। ठीक है, डिस्चार्ज तो बहुत है नोज से, इतना मतलब अभी बताया, अभी वाटर डिस्चार्ज का क्या पॉइंट बताया मैंने? अभी आपने ये बताया था ना LU, मैं भी भूल गई कौन सा पॉइंट, UB58, UB58 है ना, तो UB58 को लगा ले हम लोग। ओके, तो जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, जो नल की तरह खुल गया, टैप खुल गया हमारा, बस वो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बंद कर देना मैम। ये जो बंद करना है अपना, वो जैसे हम लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, जो इतना गर्म पानी हमने पिया ना, तो वो सब अंदर इतनी हीट क्रिएट कर देते हैं, वो ड्राई तो हो जाता है हमारा, पर वो अंदर कहीं ना कहीं वो ड्राई, हमारे एक्यूप्रेशर में लिखा है कि ये जो बलगम, ये म्यूकस, ये जो आप ड्राई कर देते हैं और सुखा के, तो वो कहीं ना कहीं आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, किसी के
स्टोन बना देता है, ऐसे डिफरेंट चीजें कर देता है। तो हमारे इसमें हम कुछ भी रोकने का पॉइंट कुछ भी नहीं है, ऐसा ड्राई करने का, सुखाने का, इस तरीके की चीजें हम नहीं करते हैं। तो एक्यूप्रेशर में उन पॉइंट्स में से मतलब कहीं ना कहीं से उसका वो निकल जाता है, वो आपको फील नहीं होता है ना। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लास को खत्म करूं क्योंकि लेट हो गया, मेरे पेशेंट आना थैंक शुरू यू हो सो गया। मच। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आज लीव करते हैं। फिर भी आप तो मेरे साथ ग्रुप में हैं ही, वहां पे किसी को कुछ पूछना होगा तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू रमोला जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू विभा जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं आपने कि और इससे हम अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। ये तो मैजिकल पॉइंट्स हैं, एक्चुअली मैजिकल पॉइंट्स हैं जी। खासकर ये न्यूरो को, न्यूरो जेनेटिक जितनी प्रॉब्लम होती है न्यूरो से रिलेटेड, आप इन पॉइंट्स का इफेक्ट देखेंगे। खासकर कोविड के बाद में आपको इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे। थैंक यू सबको, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। Thank you, ma'am. Thank you.